JavaScript strings. Topic is JavaScript strings. See, string is always a special place in programming domain because most of the time the real world is working on strings only. In fact, our names are also a string. So JavaScript strings are used for storing and manipulating text, and more or less most of the or documentation in the strings only. That's why the strings become very important in programming domain to accumulate itself in in accumulate itself in the requirement of the real world. Now, JavaScript strings are used for the storing and manipulating text. It is. JavaScript strings are a JavaScript string is zero or more character written inside a quotes. Simple as that. What a string means in the JavaScript? It is something which is written within a double quotes or single quote. We can use a single quote or double quotes. Okay. Okay. You can use single quotes inside a string as long as they don't match the quotes surrounding a strings. First of all, have this example, then we'll go for it. Here we have an example that Volvo XC60 we need to print with the help of the car name variable, with the help of the variable name car, which is defined by the variable, and it is having a double quotes here. Okay, and the second one is having a single quotes out here. Okay, so for the double quotes we have this. Okay, for the double quotes or single quotes, we are able to print this with the help of the document.get element by ID. We discuss what is the class and HTML2 by we are writing this document.get element ID and the in the event class as well. How these three steps were working up for the capturing, you know, that we have discussed in our last class. This is what something it is. This is what something it is. We just have a document dot get element by ID in our class car name and the car name too. Just car name and car name too. Finally, and what are the strings inside that variable answer one? Here we are focusing if we define double quote and single quote as a string, and sometimes we need a double quotes or a single quote within a text also. So how can we go for that definition? We will go for that definition. We will go for that definition like this. You can use quotes inside a string as long as they don't match the quotes surrounding a string. Now, if we are using double quotes, okay, then we can only use single quotes within a string. If we are using a double quote, then we can only use a single quote. And if we are using a single quote outside to represent a string, we can only use a double quote inside a strings. Let's move for it. See, let's make an example. Here it is double quote and it has been printed, it's all right. Here it is, he is called Johnny, he is called Johnny, he is called Johnny, he is called Johnny. Let's make it like this. When we run this program, JavaScript is not able to access it because we have a access it as a string because we have a both single quote within it, and it has been stopped out here as an interpreter has been stopped the answer. It is not getting the number one answer. That's why when the break rule is, it has been only stopped out here only. So we understand this. If we want to implement a quotes within a string, we just need to take care that that quote should not be as the code define the outside string. We have
Again, take an example and change the double quotes into the single quote, which is defined outside or definition of the string. Let's see what's happened. Okay, it's not happening. It's not running because it's not able to, it's not able to accept that. It's not able to accept it, what it is. Okay. So finally it is, it's all right. He's called Johnny. He's called Johnny. Okay. So we understand three things. First, Java string have a double quote and the single quote. Second, if we need to improvise double quotes or single quote within our programming domain, then we need to take care the if we're defining double quotes within string, then it should be single quotes outside a string. If we are defining single string within quotes, then it should be, you know, it should be single quote outside a string. This is how it works. This is how it works. Okay. Okay. Let's move. Now we understand the definition of the string. Let's move for the length of the string. How the length will work. अब आप देखो string length क्या है? To find the length of the string, use the built-in length property. Length की जो property है, वो length calculate करने की जो property है, ये built-in है. The sense कि ये पहले से ही JavaScript के compilation में defined है. तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जो हम वेरिएबल टेक्स्ट लेते हैं, जो हम वेरिएबल का नेम लेते हैं ना, उस वेरिएबल के नेम को हम उस वेरिएबल के नेम को उसमें हम टेक्स्ट पास कर देते हैं. ठीक, हम जब टेक्स्ट पास करते हैं, जब हम टेक्स्ट में इस वेरिएबल के नाम को पास कर दिए, अब हम इस लेंथ अब हम इसके लेंथ में टेक्स्ट को पास किया. अब जो है हमने उस टेक्स्ट को का लेंथ जानना है. तो कैसे जानेंगे जी? जो टेक्स्ट वेरिएबल है उसके आगे लगाएंगे डॉट ऑपरेटर, और उसके आगे लगाएंगे लेंथ और उसको पास करेंगे एक वेरिएबल में. यहाँ पे वो वेरिएबल है SLN. ठीक है, और उसका लेंथ हमको इस मेथड के थ्रू मिल जाएगा. देखिए यहाँ पे हमने वो लेंथ लिया, टेक्स्ट में पास किया, और टेक्स्ट को यहाँ पे हमने डायरेक्ट टेक्स्ट को एक्सेस करके टेक्स्ट का लेंथ लेने के लिए इससे रिक्वेस्ट कर ली. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में जब डेमो को पास किया और इनर एचटीएमएल में टेक्स्ट की लेंथ ले ली, तो उसका लेंथ क्या आया? 26. ठीक है, अब आप आगे आइए. एस्केप कैरेक्टर कैसे है? एस्केप कैरेक्टर मतलब होता है बीच बीच में जो आप स्पेसेस लगाए देते हैं. अब because the string must be written within quote, JavaScript must understand this string. Like यहाँ पे देखिए, ये लिखा है ना कि we are so called Vikings from the north. तो ये वाइकिंग भी डबल कोट में है, ये भी डबल कोट में है. तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा. इसको क्या लिखना पड़ेगा? सिंगल कोट. सो स्ट्रिंग विल बी चॉप्ड, वी आर सो कॉल्ड. यहाँ तक तो पढ़ेगा वो, और यहाँ से वो नहीं पढ़ेगा, मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा. तो अबव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अबव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर का यूज किया. बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर टर्न्स स्पेशल कैरेक्टर इनटू स्ट्रिंग कैरेक्टर्स. कोई भी स्पेशल कैरेक्टर है उसको स्ट्रिंग कैरेक्टर में चेंज कर देता है. जैसे बैकवर्ड स्लैश सिंगल कोट, तो क्या होगा? तो रिजल्ट आएगा सिंगल कोट. बैकवर्ड स्लैश डबल कोट, रिजल्ट क्या आएगा? डबल कोट.
ये जब आप डबल स्लैश यूज करते हैं तो यूज को क्या करते हैं, जब डबल ब्लैक स्लैश यूज करते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है जी, ब्लैक स्लैश, बैक स्लैश। अब यहाँ पे देखो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई जब हम रियल वर्ल्ड में कोई चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल डबल सिंगल कोट और डबल कोट दोनों यूज करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? जब दोनों यूज करेंगे तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसको मैनेज ऐसे करेंगे कि आप फॉर एक जो भी कैरेक्टर को आपको शो करना है आप उसे फॉर बैकवर्ड स्लैश लगा दीजिए और वो अपने आप को डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो इसको एज अ स्ट्रिंग क्या लिखा है, बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर टर्न्स स्पेशल कैरेक्टर इनटू स्ट्रिंग। ये हमारे लिए स्पेशल कैरेक्टर है, इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देगा तो हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, वी आर सो कॉल्ड वाइकिंग्स फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल दिया है कि हमने जब इसको अगर हम इसको हटाते हैं, पहले इसको देखिए तो वो मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा। और जब हम स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं, जब हम escape बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर यूज करते हैं तो बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर जब हम यूज करते हैं तो फाइनली क्या निकल के आता है, ये इसको एज ए स्ट्रिंग ही लेता है और ये डबल कोट्स में ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये ठीक है कि जब हम जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग को देखते हैं, जब हम जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग को देखते हैं और तो जब हम जावास्क्रिप्ट के स्क्रीन को देखते हैं तो जब जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग्स को देखते हैं तो वो चीज जो है क्या कहते हैं उसको, वो आपके अपोजिट उस पर काम करती है कि अगर इनर में डबल इन्वर्टेड कॉमा शो है तो वो आउटर में इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। अगर डबल इन्वर्टेड का वो बाहर है तो इनर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए। लेकिन रियल वर्ल्ड में तो हमको इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों की जरूरत पड़ सकती है। इसके लिए हमने स्पेशल कैरेक्टर एस्केप कैरेक्टर का एक प्रावधान रखा है कि आप बैक स्लैश स्पेस कैरेक्टर रख देंगे, बैक स्लैश रख देंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग काउंट हो जाएगा, स्पेशल स्ट्रिंग, और उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे तो वही एग्जांपल था कि हमने ये जो वाइकिंग्स था ये स्पेशल कैरेक्टर था तो हमने इसके स्टार्टिंग में बैक स्पेस डाल दिया, ये कैरेक्टर बैक स्लैश एस्केप कैरेक्टर डाल दिया और इसके जहाँ पे ये खत्म होता है उसके पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले और इसके पहले तो ये रीड कर लेगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलता है ना, तो यहाँ पे रीड हो जाएगा, यहाँ पे रीड हो जाएगा, तो ये स्पेशल कैरेक्टर होगा। ठीक, ये समझने वाला बात है। जब आप इधर करेंगे इसी को, जब आप यहाँ लगाएंगे तो वो रीड नहीं होगा क्योंकि समझ रहे ना, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है लेफ्ट टू राइट है यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंड कर जाएगी चीजें, मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। आप आगे आइए, सेम हम डबल कैरेक्टर के सामने डबल स्लैश भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इस कैरेक्टर के सामने डबल स्लैश कैसे लगाएंगे, तो हमने तो कैरेक्टर का डेमो देना है, इन्होंने बस प्रिंट किया है कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर है ये स्ट्रिंग है तो उसको एक्स में पास किया है, तो ये बैक स्लैश करने से वो एज ए स्ट्रिंग ही ले लेना, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे उन्होंने कहा था ना बैक स्लैश को भी आप यूज इंटरप्राइज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फिर एस्केप सीक्वेंसेस हैं, जैसे बैक स्पेस, लाइक फॉर्म फीड, न्यू लाइन, कैरेज रिटर्न, हॉरिजॉन्टल टैबुलेटर, वर्टिकल टैबुलेटर इन ऑल ना। तो फिर आता है ब्रेकिंग लॉ। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। 6 एस्केप कैरेक्टर्स हैं। तो ये ओरिजिनली तो डिजाइन किए थे कि टाइपराइटर्स, स्टेडी टाइप्स और फैक्स मशीन के लिए, लेकिन अभी ये यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम इनको यूज कर लेते हैं। ठीक है,
हम इनको यूज कर लेते हैं जरूरत के हिसाब से। जानते रहना चाहिए कोई भी चीज को ना, जानने से कभी कभी उस कॉन्सेप्ट का हम अपने लॉन्ग टर्म लाइफ में यूज कर लेते हैं। अब एक तरीका है जी, जब हमको लंबे लंबे कोड्स लिखने होते हैं तो उससे रीडेबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। रीडेबिलिटी इन द सेंस कि वो रीडिंग उसकी वो जो कॉन्सेप्ट है वो रीडेबल। तो रीडेबल कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हम जी उसको तोड़ते हैं। तो और प्रोग्रामर जो होता है मैक्सिमम 80 कैरेक्टर का यूज करता है एक कोड लाइन में। तो कैसे काम करता है? काम ऐसे करता है जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लेता है, ठीक है, डॉली हेलो डॉली लेता है उन्होंने, और एक स्ट्रिंग प्रिंट कराई है जी हेलो डॉली, ठीक। और ये भी कह रहा है कि यू कैन आल्सो ब्रेक अप कोड लाइन विद इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ सिंगल बैकस्लैश। अब आप इस कोड को सिंगल बैकस्लैश के थ्रू आप उसको टेक्स्ट स्ट्रिंग को ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ब्रेक जरूर किया सिंगल बैकस्लैश लगा के, लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर को एज अ ये जो है ये है एज अ स्ट्रिंग क्रिएट करेगा। तो फाइनली जब प्रिंट होगा तो ये हेलो डॉली आ जाएगा। तो ये जो बैकस्लैश मेथड है, एस्केप मेथड है, इट्स नॉट अ प्रेफर्ड मेथड, इट माइट नॉट बी यूनिवर्सल सपोर्ट, सम ब्राउजर्स डू नॉट अलाउ स्पेसेस। यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है अभी तो हम दिखा रहे हैं। तो ये जो बैकस्लैश मेथड है, क्योंकि इसका यूनिवर्सल सपोर्ट नहीं है तो हम कॉन्केटेनेशन का यूज करते हैं। ये जो प्लस है ये यूनिवर्सली सपोर्टेड होता है, इसको कहते हैं कॉन्केटेनेशन, जोड़ना। तो हमने जी हेलो के सामने लिखा प्लस और फिर उसको कॉन्केटेनेट कर दिया, फाइनली रिजल्टेंट क्या आ गया जी, हेलो डॉली। ओके, अभी यू कैन नॉट ब्रेक अप अ कोड लाइन इनटू अ बैकस्लैश, ठीक है। कोड लाइन को आप अब कोड के लाइन को आप नहीं बैकस्लैश कर सकते कि बैकस्लैश से पहले ही आपने बैकस्लैश लगा दिया, नहीं जी, वो बीच में यूज हो सकता है, कोड के पहले नहीं। करके देखिए, कोई भी काम करके देखिए, देखिए हेलो डॉली प्रिंट हो गया, वहां पे था तो प्रिंट नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो कोड के बीच में आ गया, तो उसका इसकी डेफिनेशन कंपाइलर में है, उसकी डेफिनेशन नहीं। इट्स ऑल अबाउट डेफिनेशन विद इन अ कंपाइलर। समझने वाली बात है, ये जो डेफिनेशन है ना, ये सिर्फ कंपाइलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आइए आगे, स्ट्रिंग्स कैन बी ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रिंग जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। नॉर्मली जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स आर प्रिमिटिव वैल्यू क्रिएटेड फ्रॉम लिटरल्स। ये स्ट्रिंग है जो लिटरल्स के थ्रू क्रिएट होता है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग्स कैन बी ऑब्जेक्ट। इन्होंने ये कहा है कि स्ट्रिंग को हम ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्ट अब तक हम समझे कि जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू डिफाइन होता है वेरिएबल करेक्ट वेरिएबल नेम के आगे, और उस वो अपने में अपोजिट होना चाहिए डेफिनेशन के लिए। और वो अगर उसकी अगर हमको टेक्स्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो हम स्पेशल करेक्टर बैकस्लैश एस्केप बैकस्लैश एस्केप बैकस्लैश करेक्टर है उसको हम यूज कर लेते हैं, और वो स्पेशल स्ट्रिंग की तरह फॉलो कर रहे हैं। अब आगे आगे देखिए, आगे हमको समझना क्या है। आगे हमको क्या समझना है जी, आगे हमको ये समझना है कि स्ट्रिंग को हम अब ऑब्जेक्ट की तरह पास करेंगे। कैसे पास करेंगे जी? ऑब्जेक्ट की तरह। अब जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग जो है प्रिमिटिव वैल्यू मतलब पुराना चला हो रहा है, और ये लिटरल से क्रिएट हुआ है लाइक दिस। यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया फर्स्ट नेम, जावा नेम, जावा को इंट्रोड्यूस कर दिया। बट स्ट्रिंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट विद कीवर्ड नेम। स्ट्रिंग्स को ना आप नया ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं कीवर्ड के थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू। आप देखिए वेरिएबल फर्स्ट नेम बराबर न्यू स्ट्रिंग जॉब, ठीक। अब देखिए वेरिएबल क्या है, फर्स्ट नेम, वेरिएबल क्या है, फर्स्ट नेम। आपने एक न्यू जहां भी आएगा समझ लेना जी ऑब्जेक्ट पे बात हो रही है। आपने एक न्यू बनाया स्ट्रिंग और उसमें पास कर दिया जॉन,
इसका मतलब क्या है, ये जो पैरामीटर है पास हुआ है जॉन, ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। और इसका टाइप क्या हो गया जी, टाइप क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। फर्स्ट नेम क्योंकि न्यू लिखा है तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई डोंट क्रिएट स्ट्रिंग एज ऑब्जेक्ट्स, इट स्लोज डाउन एग्जीक्यूशन स्पीड, द न्यू कीवर्ड कॉम्प्लिकेट्स द कोड, दिस कैन प्रोड्यूस अनएक्सेप्टेड रिजल्ट्स एज वेल। ठीक है, ये तुमको पता ही है कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर इक्वल स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, आप इधर आइए, पहले इसको देख लेते हैं। उन्होंने इस काम के लिए मना किया है बस वो जानने के लिए कि भैया स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को हम ऑब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये रहा जॉन और आपने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया फाइनली, और आपने टाइप ऑफ एक्स को इंट्रोड्यूस किया, तो ये रहा एक्स, ये रहा जॉन। फिर आपने फिर उसको ब्रेक लाइन किया और फिर आप टाइप ऑफ वाई देखें, तो यहाँ तो ये डायरेक्ट पास हो रहा है वेरिएबल में, और डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो क्या हो जाएगा जी, स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल वाई में न्यू स्ट्रिंग न्यू में स्ट्रिंग पास हो रहा है, स्ट्रिंग पास हो रहा है जॉन, तो क्या हो जा रहा है, जॉन जब पास हो तो क्या हो जा रहा है, जब जॉन पास हो रहा है, जब वाई में स्ट्रिंग में जॉन पास हुआ, तब ये जो टाइप ऑफ है इसका, क्योंकि यहाँ पे न्यू के वर्ड लिखा है, इसका टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यही समझना है, आ गया ये। इन्होंने कहा कि जी इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है इक्वल वैल्यूज के लिए। हमने कहा जी यहाँ पे ये रहा जॉन, ये स्ट्रिंग है, और ये रहा जॉन जो ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये एक दूसरे के बराबर है, एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो रिजल्ट क्या लिख के आया, हाँ एक्स इज इक्वल टू वाई बराबर है। तो स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सेफली कंपेयर्ड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी वजह से हम अवॉइड करते हैं स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में डिफाइन करने के लिए, लेकिन डेफिनेशन जानने के पर्पज से हमने दे दी है। तो लेकिन जब आप ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर बनाते हैं, जब आपको वेरिएबल के टाइप को भी सेम रखना होता है, तब ये फॉल्स रिजल्ट देगा। तो व्हेन यूजिंग द ट्रिपल ऑपरेटर, equal strings are not equal because the triple operator expects quality in both type and value। आप यहाँ पे देखिए, आपको जी यहाँ पे लिया टाइप, ये रहा स्ट्रिंग, ये रहा ऑब्जेक्ट, और फिर ये x ट्रिपल इक्वल टू वाई किया। तो जब ट्रिपल इक्वल टू किया तो इसकी वैल्यू तो सेम है, डबल इक्वल टू में सिर्फ वैल्यू चेक होना था। यहाँ पे जब टाइप डिफरेंट है दोनों का, एक का टाइप ऑब्जेक्ट है, एक का टाइप स्ट्रिंग है, तो क्या हो जाएगी जी, फॉल्स हो जाएगी। ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इक्वल करोगे तो इक्वल तो है, भले वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन कंटेंट यहाँ पे देखो, आपने एक स्ट्रिंग लिया जॉन, एक स्ट्रिंग लिया, एक और स्ट्रिंग लिया जॉन, ठीक है, आपने इसको एक्स इक्वल टू वाई कराया, तो कह रहे जावास्क्रिप्ट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। पहली बात, क्योंकि ये एक क्लास का इंस्टेंस होता है, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, तो हमेशा रिजल्टेंट क्या आएगा जी, फॉल्स आएगा। जावा के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ भी वही होगा, अगर इक्वल टू आ रहा है तो ट्रिपल इक्वल टू क्या आएगा जी, फॉल्स ही आएगा, कंपेयर नहीं कर सकते ना। सो तो x डबल इक्वल टू वाई में क्या होगा कि वेरिएबल चेक होगा, और x ट्रिपल इक्वल टू वाई में क्या होगा कि वेरिएबल के साथ साथ वेरिएबल का टाइप ऑफ भी चेक होगा। तो ये जावा स्ट्रिंग का क्या है, डेफिनेशन के टाइप्स हैं। तो हम जावा स्क्रिप्ट के डेफिनेशन के टाइप में पढ़े कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज होता है, फिर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं। और आपको ये देखना होता है कि अगर उधर डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो आप इधर अंदर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे अपने स्पेशल पर्पस के लिए। अगर बाहर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, अंदर को स्पेशल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल कंट्रेशन में, रियल वर्ल्ड में हमको कभी इंटरसेस करना होता है, एज एसिड स्टेट्स को कॉपी करना होता है, तो हम उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, हमने एक मेथड डेवलप किया है, इसको कहते हैं एस्केप बैकस्लैश।
ठीक है, आप उसको इम्प्रोवाइज करके आप स्पेशल कैरेक्टर बना के एज अ स्ट्रिंग आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, फिर हमने आगे बताया कि जो स्ट्रिंग है उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करा सकते हैं। तो हमने स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कराया, हमने न्यू कीवर्ड्स उसकी क्रिएशन की, वेरिएबल में उसको पास किया। तो जब हमने डबल इक्वल टू किया, जो हमारे एक वेरिएबल को डबल इक्वल टू मतलब कि ये कंपेयर कर रहा है चीजों को, और इक्वल सी सिंपल इक्वल टू मतलब सिंपल इक्वल टू मतलब असाइनमेंट करना, एक चीज को दूसरे चीज को असाइन करना। डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब कि आप उसे कंपेयर कर। और ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या होता है कि आप कंपैरिजन तो कर रहे हैं, आप सिर्फ वैल्यू बेस्ड कंपैरिजन। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या हो रहा है कि आपने जो सिंपल किया है वो वैल्यू बेस्ड कंपैरिजन किया है। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या है कि वैल्यू बेस्ड कंपैरिजन करने के साथ साथ टाइप ऑफ का भी कंपैरिजन आपने किया है। तो ये पूरा जावा का एक स्ट्रिंग है कि जावा स्ट्रिंग कैसे डिफाइन होती है। इतनी एक समझने के लिए बहुत अच्छा है कि भाई कॉन्सेप्चुअली इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे काम करते हैं। अब उस स्ट्रिंग पे क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। पहले उसके एक रिवीजन ले लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। देखिए, एक मेथड है लेंथ, दूसरा मेथड है इंडेक्स ऑफ, एक्स ऑफ, ठीक, तीसरा मेथड है आपका सर्चिंग, चौथा मेथड है एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग पार्ट्स, ठीक है, और उसमें भी तीन है, स्लाइसिंग, सब स्ट्रिंग, फिर आता है सब स्ट्रिंग, फिर आता है सब्सट्रैक्ट करना, हाँ, फिर रिप्लेस करना स्ट्रिंग के कंटेंट को, उससे आता है रिप्लेस, फिर कन्वर्ट करना अपर केस से लोअर केस से अपर केस, ठीक है। स्ट्रिंग जितनी लंबी उसको ट्रिम कर देना अपने हिसाब से, वाइट स्पेसेस को रिमूव करके, ठीक। स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर की किसी पोजीशन पे उसके ले लेना, तो भी तीन तरीके से किया जाता है। कैरेक्टर कोड के मेथड को डिफाइन करना, ठीक है, फिर उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना, जैसे ECM में 5 में आप स्ट्रिंग की डेफिनेशन में स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसको आप अलाउ कर दिए, तो ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। स्ट्रिंग को एरे में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक। तो ये जो है ऐसा है मामला। तो आप सोच रहे होंगे स्ट्रिंग पे इतनी एम्फेसिस क्यों है। स्ट्रिंग की एम्फेसिस इस वजह से है कि जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। तो एक बार हम हाईएस्ट डेटा टाइप पे जो सब प्रॉपर्टीज उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो जितनी भी लोअर डेटा टाइप्स हैं उनको हम अपने आप ही क्या करेंगे, अपने आप ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब आप यहाँ देखो कि स्ट्रिंग जावा स्क्रिप्ट के जो स्ट्रिंग्स हैं वो उसमें कैसे कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज मेथड क्या है। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी क्या है, कंस्ट्रक्टर होता है, रिटर्न द स्ट्रिंग कंस्ट्रक्शन फंक्शन, उसकी लेंथ होती है, वो क्या करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिफाइन करता है। स्ट्रिंग के प्रोटोटाइप अलाउड टू ऐड प्रॉपर्टीज एंड मेथड टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रिंग के मेथड्स क्या है, कैरेक्टर एड, रिटर्न द कैरेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन। इंडेक्स पोजीशन का मतलब ये है कि मान लीजिए जॉन लिखा है JOHN, तो इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3, 0 पे J, 1 पे O, 2 पे H, 3 पे M, ऐसा। फिर कैरेक्टर कोड एट रिटर्न्स द यूनिकोड ऑफ द कैरेक्टर द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है। फिर concat joins two or more strings and returns a new joined strings, okay। ends with checks whether a string ends with a specified string by characters, ठीक है। फिर आप देखो जी, from character code converts unicode values to characters, ठीक। includes checks whether a string contains the specified characters or not, index of returns the position of the first round occurrence of a specified value in a string, last index of returns the position of the last found occurrence of a specified value in the strings, okay। फिर locate compare compares two strings in the current local, मैच करेगा एक रेगुलर एक्सप्रेशंस में अगेंस्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन, रिटर्न्स द मैचेस, ओके। रिपीट कर सकता है कि कितनी बार एक कैरेक्टर रिपीट हुआ है कि स्ट्रिंग में, ये सब
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट मेथड है। स्लाइस कर सकते हैं कि एक पार्ट को आप स्ट्रिंग के एक पार्ट को आप स्लाइस कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। सबस्ट्रैक्ट क्या कर सकता है कि extracts the character from the string beginning and specified starting position through specified numbers and characters. Okay, आप सब स्ट्रिंग्स डिफाइन कर सकते हैं टू स्पेसिफाइड इंडिसेस का। कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू द लोअर केस अकॉर्डिंग टू होस्ट, मतलब आप स्ट्रिंग्स में जितनी मेथड्स कर सकते हैं वो यहाँ पे लिखा है। ये वो मेथड्स हैं जो रैपर रैपिंग करते हैं। रैपर क्लास का कॉन्सेप्ट है जावा से वो प्रिमिटिव मेथड्स के ऊपर रैपिंग कर देता था और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू एक्सेस होता था। ये वो मेथड है जो, तो वो स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, बट ये मेथड है जो रैपिंग करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे एंकर टैग है, बिग है, ब्लिंक है, बोल्ड है, फिक्स्ड है, फॉन्ट साइज, इटैलिक, स्ट्राइक सब। यहाँ पे क्या है कि हर मेथड को दे दिया गया है जो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग के डोमेन में स्ट्रिंग्स पे अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम यूज्ड है वो है आपका कॉन्कैटिनेट, बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ बहुत ज्यादा यूज होता है, मैच, रिपीट, रिप्लेस, सर्च। ठीक है, ये सब स्पेशल कंडीशंस है। स्लाइस, स्प्लिट, सब स्ट्रिंग्स, ये सब स्पेशल कंडीशंस है। लोअर केस, अपर केस तो हाँ कभी कभी वेरिएबल कभी कभी काम आता है, बहुत नहीं आता है। ट्रिम स्पेशल केसेस है जब हमको हमारे पास उसका काम कम ही होता है। ठीक है, वहाँ पे कहा जाता है वैल्यू ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ काम होता है। तो ये वो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये एचटीएमएल के ऑब्जेक्ट्स हैं जो सब जानना जरूरी होता है, ऐसे सिर्फ एक ये जो है ये जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग्स हैं कि कितने सारे मेथड्स डिफाइन किए जा सकते हैं। एक और चीज आप देखेंगे, देखिए जो स्ट्रिंग्स में काम किया जा रहा है, एरे में भी मोर और लेस वही काम हो रहा है, कॉन्कैटिनेट हो रहा है इन सब चीजों पर। तो आप देखेंगे एक बार कोई डोमेन के एक्सप्लोर करके आप देख लेंगे तो मैक्सिमम चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। इसीलिए हमने स्ट्रिंग को बहुत डिटेल में एनालिसिस किया है। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रिंग पूरा समझ में आया होगा। और हम लोग कल स्ट्रिंग मेथड्स को एक्सप्लोर करेंगे। आज हमने स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन दिया और स्ट्रिंग मेथड्स को समझने की कोशिश किया कि क्या देखना है। ठीक है, रिलैक्स सर, एंजॉय।